So hello everyone, welcome back to my channel. Today we'll be starting off with types of a good posture. Broadly, there are two types of posture: inactive posture and active posture. Inactive posture, when a person is sleeping or having rest and body requires minimum muscular efforts. जब हमारी बॉडी एकदम रेस्ट पर होती है या स्लीप मोड में होती है, जिसमें हमारी बॉडी के मस्कुलर एफर्ट्स बहुत ज़्यादा कम लगते हैं, वो हमारा इनएक्टिव पॉस्चर होता है. और जब हम किसी मस्कुलर एक्टिव में इन्वॉल्व होते हैं, वो हमारा एक्टिव पॉस्चर होता है. And then again, the active posture is again classified into two types, that is static or dynamic posture. You can get the notes of these chapter in the community section of this channel. So उसमें भी मैंने एक फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन कर रखा है कि किस तरीके से posture दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, inactive and active. And then further, active posture is classified into two types, that is static and dynamic. Static posture is one where the body is passive, not active, और changing stances and forces are acting in equilibrium. Static posture एक ऐसा posture होता है जहाँ पर हमारी बॉडी एक पैसिव स्ट्रक्चर में होती है, वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होती है, और जो हमारा बॉडी होती है वो एकदम इक्विलिब्रियम स्टेट में होती है. डायनामिक posture वो होता है जब हमारी बॉडी मोशन में होती है, हमारी बॉडी एक्टिव होती है और कंटिन्यूसली वो अपने स्टैंसेस और अपने प्रोस्पेक्ट्स को चेंज करती रहती है. Postural positions, whether inactive or active, that is static or dynamic, can be broadly classified in four categories. Postural positions को four categories में divide किया जाता है, चाहे वो static है या dynamic है. The first one is a static position or posture. Second one is sitting position or posture. The next one is lying position or posture, and the fourth one is the walking posture. The first one is a standing position or posture. Standing position of an individual is generally considered as the basic posture from which all his other postures stem. स्टैंडिंग पोजीशन एक बहुत ही बेसिक पॉस्चर होता है जहाँ से एक इंडिविजुअल के अलग दूसरे सारे पॉस्चर्स निकलते हैं. Erect standing posture is literally static. It is in reality is movement upon a stationary base. जो एक सीधा स्टैंडिंग पॉस्चर होता है वो एकदम स्टैटिक होता है इन नेचर, और ये सिर्फ एक स्टेशनरी बेस पर एक स्टेशनरी बेस पे ही रियलिटी में एक मूवमेंट होता है. The application of the principles of stability to a standing position that is balanced and free from muscular and ligamentous strain would be that the line of gravity of the center of the head, chest, abdomen, trunk and pelvis fall in a straight line. जो भी हमारा head, chest, abdomen और pelvis, इनका जो बिल्कुल बीच का सेंटर पार्ट होता है, जब वो एक पूरी तरीके से वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में आ जाता है, उसे हम स्टैंडिंग और इरेक्ट पोजीशन बोलते हैं. इन स्टैंडिंग पोजीशन वेट शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द बॉल ऑफ द फुट एंड द हील. जो वेट होता है स्टैंडिंग पोजीशन में, वो दोनों फुट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेबल होता है. Static erect postures should be deliberately avoided except for short periods. जो हमारा स्टैंडिंग इरेक्ट पोजीशन होता है, इसे ज़्यादा लंबे पीरियड तक हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हमारे जब दोनों फुट्स पर इक्वल प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे फुट्स कभी कभी स्वेल भी हो जाते हैं. सो इसलिए हमें जो प्रेशर होता है अपनी पूरी बॉडी का, उसे शिफ्ट करते रहना चाहिए. दैट कुड बी कि हम अपने फुट्स को आगे पीछे करें या लेफ्ट हैंड साइड में उनका मूवमेंट करते रहें. इन केस वन हैज़ टू स्टैंड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन देन So in case one has to stand for a longer duration, the effort should be made to shift the weight from one foot to another periodically. So this is the same thing कि आप एक इरेक्ट स्टैंडिंग पोजीशन में बहुत ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते हैं. सो यू हैव टू शिफ्ट द वेट विच इज़ बीइंग प्रोवाइडेड ऑन योर फुट डेलिबरेटली in between the durations. This can be done either by moving one leg sideways and later on moving the other one similarly. So इस तरीके से आप अपने फुट्स पर बैलेंस कर सकते हैं अपने पूरी बॉडी वेट को. The next is sitting position or posture. There are three types of sitting posture. The first one is a simple sitting, second one is a reading while sitting, and the third one is writing while sitting. So I am not reading it line by line, I will just explain what is the main part of this. The simple sitting position is one in which a person occupies a position wherein the muscle involved in the process experience minimum stress and strain. So as discussed earlier, जब आपकी बॉडी अच्छी तरीके से पहले ही गुड posture में होती है, तो आपकी मसल्स पर बहुत ज़्यादा कम स्ट्रेन और स्प्रेन पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा बचती है एंड यू फील लेस फटीग. एक सिंपल स्टैंडिंग पोजीशन में क्या होता है कि आपकी जो स्पाइन होती है वो बैक ऑफ द चेयर के बिल्कुल साथ इरेक्ट होती है. आपके लेग्स जो होते हैं वो पूरी तरीके से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल होते हैं, और आपके जो लेग्स होते हैं वो नीचे ग्राउंड को टच कर रहे होते हैं. सो दैट इज अ सिंपल सिटिंग पोजीशन, जिसमें आपका जो पूरा बॉडी पॉस्चर होता है वो पूरी तरीके से सीधा रहता है. द नेक्स्ट वन इज द रीडिंग वाइल सिटिंग. द रीडिंग पॉस्चर is almost similar to the simple sitting position.
जो रीडिंग पोजीशन है वो ऑलमोस्ट सिंपल सिटिंग पोजीशन की तरह ही ठीक है, बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू नोट इज दैट द डिस्टेंस बिटवीन द आईज एंड द रीडिंग मटेरियल शुड बी अबाउट 30 सेंटीमीटर्स। जो भी आपका रीडिंग मटेरियल है और आपकी आईज के बीच में एटलीस्ट 30 सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस होना चाहिए, एंड द एंगल ऑफ योर रीडिंग मटेरियल शुड बी ऑफ 45 horizontally. So this is the important point which you have to remember. Otherwise this is the small details which you can see कि जो आपके legs होने चाहिए वो आपके foot पे rest करने चाहिए पूरे ground पे, और chair और table एक इक्वल लेंथ की होनी चाहिए जिसकी वजह से आपकी बॉडी पर स्ट्रेन ना पड़े। द नेक्स्ट वन इज राइटिंग वाइल सिटिंग। राइटिंग वाइल सिटिंग पोजीशन में क्या होता है कि आपकी जो चेयर होती है वो टेबल से थोड़े पास आ जाती है, बिकॉज यू हैव टू रेस्ट योर एल्बोज ऑन द टेबल, बिकॉज यू हैव टू राइट इट। ठीक है, सो राइटिंग में भी आपकी जो स्पाइन होती है उसको आपको इरेक्ट रखना है, आपके जो पैर होते हैं वो ग्राउंड पर टच करने चाहिए, and the main thing is that you have to tilt your head to write something. So this is the main thing कि आपकी स्पाइन जो होनी चाहिए वो इरेक्ट रहनी चाहिए जब आप अपनी चेयर पर बैठते हैं, and the lower region of the spine जो कि लंबर रीजन होता है वो बैक ऑफ द चेयर के मिडल ऑफ द चेयर के बिल्कुल टच करना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज लाइंग पोजिशन और पॉस्चर। जो लाइंग पोजिशन और पॉस्चर होता है इट इज सिमिलर टू द शवासन विच इज डन इन द योगा। ठीक है, सो इसमें क्या होता है कि आपके जो सेंटर पॉइंट्स होते हैं बॉडी के वो एक ही लाइन में होने चाहिए हॉरिजॉन्टली। इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी मसल्स पर बहुत ही ज़्यादा कम स्ट्रेस पड़ता है और आप अच्छे तरीके से रिलैक्स कर पाते हैं। और ये बहुत ज़्यादा एडवाइजेबल है डॉक्टर्स के थ्रू कि आपको हमेशा सिर्फ एक पोजीशन में नहीं सोना चाहिए। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो हमेशा सिर्फ एक पोजीशन में सोते हैं, तो उससे क्या होता है ना कि आपकी बॉडी को आदत पड़ जाती है एक पोजीशन में सोने की, तो आपकी बॉडी का सारा वेट हमेशा उस वाले साइड पे पड़ता है जिस साइड में आप सोते हैं। सो उसकी वजह से भी आपको पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज हो सकती हैं। सो आपको अपनी जो स्लीपिंग पोजीशन है वो रेगुलरली और डे टू डे आपको चेंज करती रहनी चाहिए ताकि आपको अच्छे तरीके से रिलैक्स फील हो और आपको अच्छे तरीके से स्लीप मिले। The next one is the walking posture. In a dynamic movement like walking, the force should be directed as much as possible in a straight line. So walking posture में क्या होता है कि walking posture एक बहुत ज़्यादा डायनामिक मूवमेंट है। इसमें आपके हाथ पैर और पूरी बॉडी जो होती है वो एक अलाइनमेंट में मूव करनी चाहिए। When you have to keep your one leg ahead, तो आपको जो दूसरा पैर होता है वो पहले से ही उठ जाना चाहिए जब आपका पहले वाला पैर जो है वो ग्राउंड को टच करता है। ठीक है, एंड साथ ही साथ जिस स्पीड से आपके पैर चल रहे हैं उस स्पीड से आपके हाथ भी चलने चाहिए। सो दैट इज द वॉकिंग पॉस्चर। देन causes of a poor posture, we will cover this points of causes of a poor posture in our next video. So this is it for this video. I hope you're able to understand it. जो मेन aspects हैं हमारे posture के वो हमें ये याद रखने हैं कि दो तरह के हमारे posture होते हैं, inactive और active. Active is further divided into two types, that is dynamic and static. Dynamic और static posture जो होते हैं दोनों को मिला के हमारे चार positions बनती हैं। एक standing position, एक है हमारी sitting position. Sitting position भी further 3 parts में divided है। एक है simple sitting, दूसरी है रीडिंग वाइल सिटिंग एंड तीसरी है राइटिंग वाइल सिटिंग। ऑलमोस्ट सेम है, कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं और मेन पॉइंट्स हैं, दैट इज जिसमें हमने बताया था कि रीडिंग मटेरियल और आइज के बीच में डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर्स का होना चाहिए, रीडिंग मटेरियल का एंगल 45 हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। राइटिंग वाइल सिटिंग में आपका लंबर रीजन मिडल ऑफ द चेयर को टच करना चाहिए। लाइंग पोजिशन इज सिमिलर टू द शवासन इन योगा, यू हैव टू चेंज योर स्लीपिंग पैटर्न्स डे टू डे ताकि आपको एक साउंड स्लीप मिले। वॉकिंग पॉस्चर में एक करेक्ट जिस तरीके से आपके लेग्स चलते हैं उस तरीके से आपके हैंड मूवमेंट्स होने चाहिए और एक कॉन्टिन्यूस पेस रखना चाहिए आपको अपनी वॉकिंग में। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। जो भी इन यहाँ पे पेजेस पे लिखा है दैट इज रिटन इन वेरी सिंपलर लैंग्वेज, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड इट बाय रीडिंग इट। आई हैव ओनली हाईलाइटेड द मेन पॉइंट्स, सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।